How are you all? Are you excited? एक इतनी पंचुअल ऑडियंस मैंने कभी नहीं देखी, वो भी सेकेंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर से. यू आर सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर योर सीनियर्स. ओके, लेट्स हैव एन आइस ब्रेकर. कौन से कॉलेजेस से स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन हैं? कैन यू प्लीज कमेंट योर कॉलेज नेम इन द चैट बॉक्स. Wow, there are different colleges names other than JSCOE. अच्छा, so disclaimer, we will try to keep this session as interactive as possible. सब लोगों को interact करना है, chat box में reply करो. If you want, you can unmute your mics. ठीक है? No noises, कोई भी disturb नहीं करेगा session को, otherwise session को cancel कर दिया जाएगा. Okay? I just hope so कि हमारे juniors काफी अच्छे students हैं, जो कि कुछ भी mischiefness नहीं होगी आज के session में, and we are good to go. So at the end of this session, why you have to attend this session till the end? At the end of this session, you will be taking away two major things from here, which are one, first of all, is the chance to get the training for GDSC lead, which has so many things. Like हमने आपके लिए sessions plan किए हैं. We have where you will train to write answers, to make videos and everything. And the second is a special reward which will be like just for JSCOE students, but yeah, you have two rewards to take away from here. And also the resource file जहाँ पे आपको सारी guidelines and every possible thing, every possible sample answers and everything which you will be needing while applying for GDSC lead, you will be taking it away from here. Okay, so are we good to go? Can I see some yes, yes, yes in the comment box? Cool. Devendra, are we good with the recording? Okay, cool. So I would like to welcome you everyone to this special session of us, which is one of my dream sessions. Okay, so how to become the GDSC lead. GDSC is our it's a technical community club of every college has a technical community club, and you can be the leader. So currently I am the leader. I will introduce myself. Next slide, Prahlad. My name is Jasmine, and I am a third year ENTC student from Jayawantrao Sawant College of Engineering. And professionally, I am an app developer, and I am holding the community lead positions for GTSC and MLSA at my campus. Okay, so what does a lead's life look like? Okay, we will have a peek into that. Next slide. Okay, what makes me feel that I am a leader is like this is my motto of leading something. Okay, whenever you do something, there's a motto behind it. So my motto behind being a lead is, if my actions inspired others to dream, okay, dream more, learn more, and become more something, a better person from which you are right now. This is my motto, because of which I am a lead. This was my motivation when I was applying to be a lead. So let's see how my journey up till now was. Next slide. These are a couple of photos from all the sessions and webinars that I have attended. A few of the people from here are a part of my journey. They have already witnessed this moments with me. They have shared these moments. Here you can see the below photo, which is on the left corner of the screen. This is our team, current GDSC JSCOE team. So the bigger photo, downside of Deaf Fest. This is the photo of goodies. Okay, this is something materialistic which excited me when I was in my first year. That why should I prepare for GDSC lead? This was my motive. Like I used to see this kind of goodie pictures on LinkedIn that students used to post. Like they have collected this much goodies in an annual year, and
this was my dream that okay, one day I will work so hard that one day I will be posting something like this. So this is my dream come true, and my collection of goodies which you can see over here. There are pictures from the topmost at the right corner is a picture from the GDSC lead, which is of all over leads from Pune. So this was our annual onboarding event which we had, and you know what, being a lead is a great experience. Being a part of a team, being a community member, it's fine, okay, okay है. But जो lead बनने का experience होता है, it's phenomenal. Like you get everything, you get connections, you get fame, you get support, the community support which community gives you. The community is something, it has so much power that it can provide you your new startups, it can provide you your internships, your job offers, your placements, and everything. The connections which you will be making here are so strong. Okay, so finally, the most important pick of this complete slide, this two, in which you can see Ankur Variku. How many of you know Ankur Variku? Who is Ankur Variku? How many of you know? You can even raise your hands. Okay, there are three people. So he's a motivational speaker, and also he also speaks on financial stuffs and how to grow financially, how to grow in your teenagers and everything. So he's the speaker, and I was so lucky to like interact with him online. This is from the GDSC Lead Summit video, which Lead Sync, which we have every quarterly months. In 4 months, we have a summit, and the leads get a chance to meet people from Google experts, this kind of motivational speakers and everything. So this there we were like 100 to 200 leads, and we were live interacting with him. You know, this is so awesome to just think about. It was my dream to like meet him and see him, and it was just one screen away that I can see him right now in this meet. You can imagine like you have Ankur Variku in this meet, and it is such a great thing to have. And after a few weeks, I got a chance to meet him live at an event at a COEP, where my team was there with me, and we got a chance to meet him, see him live. We got a chance to attend his seminar live. And the most important photo, the Deaf Fest. Deaf Fest is like annual event organized by Google's Developers Club. It is a regional community. Okay, we will be coming to this point. What are the regional communities and what kind of different communities you can be part of? We will coming it in the upcoming slides. So this was the annual fest, which is conducted by GDG, and here we are all the volunteers. I'm sure you cannot find me out, but yes, I am there on the stage, and even I have like okay, Prahlad is showing me there. So I'm there, the small one sitting over there. And even like we have a few people in the meet who were there with me volunteering over there. We have Devendra. So yeah, we had an amazing experience. We had so many technical experts from the industry who were guiding us to like organize such a big event. It was for like 1,000 people. Yeah, I guess we had over 1,000 people over there, and we were there organizing each and everything. You know, what you get to learn from community is first thing experiences. You get connections and materialistic benefits. Of course, you can see over there the personal self building, the self confidence which you get. If many of you follow me on LinkedIn, like there was a recent post which got my maximum reactions and which got viral back then. There's a photo of that event over here. So it was my first time I was speaking publicly in front of so many people. This was an event organized for the first year students of our college, and I was so scared at that moment. Even before that event, I have took so many sessions, but at that point I was so scared. Like I just left the hall and I was standing outside and I was shaking completely, and I was like, I cannot do this. Even though I am a lead, I cannot do this. But then there was a moment. Okay, my friends, my colleagues, my teammates, they encouraged me. Okay, you got this, you have done this before. Rather be it online, you have done this before, and you can do this right now also.
And that confidence, I walked in, and once I started, there was no looking back. This is the level of confidence which the community, which GDSC gave me. I was a person, I never used to go on stage in my school time or my junior college. I never used to go on stage. I was so scared of doing that. But right now, if like I have to give any interview, I have no fears. I have given so many interviews for my GDSC lead and other all the things that right now I have no risk. I have no fear of standing in front of 200 people. I have no fear of that. Communication skills, excellence. This is what community gives. This is what GDSC is going to give you. You are mentored by Google experts and the industrial experts. So this is why you have to apply for GDSC lead, and this is my story, that what I have achieved up till now. So let's see what we have the future plans of this session. Can we please have the next slide? Okay, here are the few points which we will be discussing. If you have any doubt at any point, you can stop me right there. I am observing the chat boxes. I am observing. You can raise your hands. You can unmute yourself. Stop me right there. Ask your doubts, and then we will move forward. Okay, don't wait for the last Q&A session. We will be having it, but do not wait for that. If you have the doubt, ask it right away. Okay. So, who is a lead? We will be seeing who is a lead, what are the benefits of being a lead, prerequisites, how is the application process. Application process has already started, and what is the application, what are the different rounds we are going to have this year. We have a few changes in the process this year. So, we will be seeing what are these changes and how you have to prepare for it. Then we will be seeing the application form. I have snippets of application form. I hope some of you have like gone through what are the questions, what are the changes in this year's application forms, and how I am searching for the next lead for my campus and the other technical programs you can be a part of, and then Q&A session. At the end of this, I will be giving you a resource file, which will be a great benefit and a gift for you for this event. So let's start with who is the lead. Next slide. Okay. Who is the lead? The simple answer is I am a lead, and you are going to be the future leaders. Okay. Even though if you are not a GDSC lead, you are going to be a leader one day, and I'm damn sure about it, because the way you joined the event on time, the amount of awareness you have regarding the technical communities, I'm really very sure you are going to be the leaders one day. Okay. But we will see what does a GDSC lead does and who is the lead. So GDSC is Google Developer Students Club. This is the full form. And GDSC leads are the passionate leaders at university who are dedicated to helping others. You know the term peer-to-peer learning. Like we learn more with our friends or our seniors and juniors rather than we learn with our teachers. Okay, this is the simple concept. Like even before one day of exam, we learn better with our friends, and like in classrooms, we do not understand that much amount of things. Okay, so who is the GDSC lead? They are the passionate leaders. Okay, and what do? They are like Google collaborate with leads, and they supports us to start and grow an on-campus community. Okay, we establish a community. GDSC lead एक community है टेक्निकल क्लब. ओके, मैं हिंदी में समझाती हूँ. ये क्लब एक अभी एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज हुए हैं, देन एक लीड सिलेक्ट होगा. देयर इज अ प्रोसेस, इंटरव्यूज होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म एंड एवरीथिंग, एंड एक लीड सिलेक्ट होगा. आफ्टर दैट दिस लीड विल बी फॉर्मिंग अ टीम. ओके, राइट नाउ मेरे पास एक टीम है जो मैंने फॉर्म करी थी अगस्त में लास्ट ईयर. सो द लीड विल बी फॉर्मिंग अ टीम. टीम में कौन रहता है? देयर आर द मैनेजमेंट मेंबर्स, देयर आर टेक्निकल मेंबर्स, देयर आर मेंबर्स फॉर द कंटेंट क्रिएशन, फॉर डिजाइनिंग, फॉर सोशल मीडिया प्रमोशंस. सो अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट स्टूडेंट्स को लेके एक टीम बनाई जाती है, विच इज नोन एज GDSC को टीम. एंड देन दिस टीम इज डेडिकेटेडली वर्किंग फॉर अ ईयर. एक ईयर का टेन्योर रहता है, एंड जस्ट लाइक हमारा टेन्योर अभी अप्रैल 15 को एंड होगा. ओके, so after this tenure, you will the next lead will be generating a new team, and that team will be working for the next year. ठीक है. तो GDSC में आने के सबसे कॉमन क्वेश्चन था स्टूडेंट्स का, GDSC में हम पार्ट कैसे ले.
So there are 3 ways to take part in GDSC. The first one is to become the lead. लीड बन जाओ, खुद की टीम बनाओ एंड देन रूल ओवर द कैंपस. ठीक है. द सेकंड वे पॉसिबल वे इज कि तुम को टीम मेंबर बन सकते हो. द लीड इज समवन एल्स, तुम उसके को टीम मेंबर बनोगे. को टीम मेंबर बनने के लिए क्या चाहिए? यू हैव टू बी एक्सपर्ट इन एनी पर्टिकुलर स्किल. डिजाइन टीम में डिजाइनिंग की स्किल्स वाले लोग, जिनको सोशल मीडिया पसंद है, जिनको सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, जिनको इंस्टाग्राम यूज करना और इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम सब समझते हैं, दे आर द सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम्स. ओके. So if you have any particular skill and if you think that you are not like right now ready for being a lead, so तुम्हारे पास second option है that you can be part of core team. Third option is community members, which right now आप सब हो. ठीक है. You all are the community members. आप हमारे organize किए हुए sessions में आते हो and you gain the knowledge, you gain the resources which you want and you leave. Okay. So there are 3 ways to take part in GDSC. Is it clear? ये सबसे बेसिक क्वेश्चन सब लोगों का क्लियर है कि जीडीएससी में आना कैसे है. ओके. सो देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर द नेक्स्ट जीडीएससी लीड. सो अभी जब हम आगे प्री रिक्विजिट डिस्कस करेंगे एक लीड बनने के लिए क्या क्या लगता है, एट दैट मोमेंट आई विल बी टेलिंग यू कि मैं क्या ढूंढ रही हूँ नेक्स्ट जीडीएससी लीड में. और मेरे से ज़्यादा जो इंटरव्यूज लेने वाले रहेंगे वो कुछ देख रहे हैं आपके अंदर कि इज देयर दैट फायर to like build the community, to help others. क्या वो fire है या everything you are doing just for the name and fame and the materialistic things. Okay. Next slide. So GDSC leads बनने के लिए skills क्या क्या चाहिए वो हम देखते हैं बाद में. Let's see कि तुम्हें यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है. What you are going to get. As a lead, you will get a chance to get mentorship from Google. As I said, हमारे जितने भी campaigns होते हैं उनके लिए जितने भी experts आते हैं, maximum सब Google के वो Google में काम करने वाले Google developer experts या फिर और दूसरी बड़ी companies में industrial experts जिनको tons of experience रहता है, वो हमें train करने आते हैं so that we can train you guys. Okay. Even GDSC leads get training every quarter month ताकि we can train you how to be a great speaker. The Ankur Warikoo वाला event, that was how to be a great speaker. Okay. So ऐसे बहुत सारे sessions and बहुत सारे resources. We have dedicated portals where हमें बहुत सारे courses available रहते हैं GDSC leads को. Free of cost, we can access them anytime for a year and we can extract the full potential of all the resources which are provided by Google officially. ठीक है. So we get a mentorship from Google, we get to join a global community. GDSC सिर्फ इंडिया में नहीं है. ठीक है. It is all over the world. And जब हमारे summits होते हैं, we get to like meet people from South Africa and America and बहुत सारी जगह से बहुत सारे leads आते हैं. And we get to see like वहाँ पे कैसे उनके sessions चल रहे हैं, what all creative things they are doing. Okay. And other than this, we get practice be sharing by your skills. हम जब हमारी skills share करते हैं, you will be asking कि क्यों किसी को pass over करना है, like why am I taking this session, या फिर अभी जब हमारे web के sessions रहेंगे या flutter के sessions रहेंगे, हमें क्यों लेने हैं. We get to learn more by teaching others. जब हम किसी को पढ़ा रहे हैं कुछ, तो हमें उसके अंदर परफेक्ट होना पड़ेगा. दैट इज द मोमेंट जब हम क्लियरली किसी को कन्वे कर सकते हैं दैट व्हाट उन्हें क्या सीखना है. किसी को कन्वे करने के लिए फर्स्ट हैंड हमें अच्छे से आना चाहिए. सो वी गेट टू प्रैक्टिस आवर स्किल्स बाय डिलीवरिंग इट टू अदर्स. ओके. वी हेल्प स्टूडेंट्स ग्रो. The amount of like jitne fame and everything, it was my birthday in December and the amount of messages I got and the amount of good wishes I got, it was so overwhelming. Like I have did something good in my life. That moment I realized that I have did something good in my life. Okay. There were messages like, okay ma'am, you are too good and you are helping students and we feel really very great. And that feeling of you feeling great makes me feel great. We get to build the solutions for real life problems, like solution challenges, hackathons होती है and real life problems जो होती है वो face करके students को team lead करके
we get a chance to solve these problems and participate in the global level hackathons. Okay, so this all are the perks of being a GDSC lead. We will see the next slide and we will see what is so special about GDSC. Like सिर्फ GDSC में special क्या है? ठीक है. First point is like we gain the critical technical knowledge and soft skills needed for the career and prepare them and their fellow students for the future. Okay. हमें क्या क्या मिल गई? Technical skills मिल गई, soft skills मिल गई. Then the second point is most important, which is highlighted. ठीक है. 84% of the DSC leads in India shared that they acquired a job or internship due to their experience in DSC. DSC में जब हम काम करते हैं, when we show the certificates of being a GDSC lead, सामने वाले को the recruiters get a proof कि इसके पास public speaking skills है, इसके पास communication skills है, she has the confidence to do something, she has the technical skills, as she has delivered something to others, she is good in that particular skill. ठीक है. This is the proof. Okay, this is the proof जो recruiter को मिलता है. Resumes में लिखना easy होता है कि मुझे मेरे बच्चे रहते हैं skill set में लिख देते हैं. They have management skills, they have each and every skill that possibly exists in this world. What is the proof? They don't have any proofs. So the community is a platform which is like it gives you a certificate that okay, this is the student and he or she has like proven his abilities through working in real time. Okay. Is being GDSC lead like for a specific time period or till then you graduate? No, it is like for a specific time period. It is a 1 year tenure which starts with in August when you will get your like there are the results who is selected as the GDSC lead, and my tenure is going to end on 15th of April. So there is a particular time period and you have to complete all your works and all your duties and all your dreams in this particular time span. And after that time span, the new lead will come, he will be leading your campus and he will be carrying forwarding your legacy. I hope that answers your question. And we will have the next slide. Prerequisites. So this slide will be answering Akansha's question. Okay. So what are the prerequisites for being a GDSC lead? GDSC lead is an combination of a person having soft skills, okay, and technical skills, both equally balanced. You are leading a technical club. You cannot be a lead without any technical skill. So technical skill is compulsory. Be it an intermediate level or like beginner level technical skills, it's fine. When I started my journey, when I was at the interview desk and I was giving my interview, I was not that technically prepared for it. I did my Android development using Java. I just knew one language, which was Java, and not even DSA in Java. It was just core basics of Java. And I made a couple of projects in it, like 2 or 3 projects, and I was really very beginner to intermediate level technical knowledge I had. But what gave me an edge over it was what covered up my technical skills, that I have a plan. I had a plan what I was going to learn, how I was going to learn, and from where I was going to learn. The recruiter or the interviewer asked me, like, you don't have that good technical skills. How are you planning to learn them? And I had my exact answer prepared for it. Like, how am I going to learn it and how I am going to use it? So even if your technical skills are beginner level or intermediate level, do not worry about it. Even if you have not started yet, I will suggest, if you have your soft skills section strong, apply for GDSC lead. Don't think about technical side. Apply for GDSC lead. You have a time span of like 2-3 months till there are interviews and everything. You can learn by that time. 3 months are more than enough to like being an intermediate level skilled person. You can choose any field of your choice and then you can start learning. So what is a GDSC lead? He or she must have soft skills and technical skills. Soft skills, what does a soft skill like particularly consist of? Can you tell me some of the soft skills?
What are soft skills? Like what are the like basic intercommunication? Confidence, yes. Confidence again. Is it leadership? Is it leadership quality? Punctuality, leadership quality, speaking skills, communication, public speaking. You should have good public relations. This is one of the most important things. Even if you are a good speaker, but you don't have like good public relations, then it's a bit difficult for you. Adaptability, most important. Like you have to like adapt yourself in each and every condition. Situation handler, yes. Risk taker, is it a soft skill? Yeah, you have to take so many risks. Passion towards helping community. Passion is the like first ingredient. Like चाय बनाने के लिए दूध लगता है ना, वैसा passion is something. उसके बिना चाय नहीं बनती. Okay. Good body language, yes. Body language is something which appeals the viewers. Why should they listen to you, and how interested you are in like delivering your content to them. Body language is something which defines this thing. Professionalism, most important. लोग हल्के में ले लेते हैं उसके बिना. Professionalism is most important. कभी कभी डरना भी चाहिए तुम्हारी टीम ने तुमसे. Yeah, we have a bunch of soft skills. Enthusiasm to learn new things. Perfect, perfect. एक smart audience है आज. I'm so happy. Okay, so जो लिखा है उसको भी एक बार रीड कर लेते हैं हम कि प्री रिक्विजिट्स क्या है. मैक्सिमम हमने ग्रेट सारे आंसर्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं. सो प्री रिक्विजिट्स आर मिनिमम 1 year लेफ्ट फॉर ग्रेजुएशन. सो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं. ठीक है, यू शुड हैव 1 year एक साल बाकी रहना चाहिए. And even I will suggest if like there are third year students in this meeting, final year rahega, I would recommend it to like be a GDSC lead. If you want you can be, but I won't recommend it क्योंकि like final year हमारे placements के लिए और काफी सारी चीजों के लिए रहता है. So I guess the perfect time to be a GDSC lead is when you are in your second year. Year वालों last chance है. First year के लिए एक और opportunity रहेगी next year. But second year के लिए this is the last chance, and third year के लिए it will be a risky shot. If you want to take it, you can absolutely have it. Okay, so minimum 1 year left until graduation. Enrolled in an undergraduate or graduate program. You should be an engineering graduate or undergraduate student. Okay, you should be able to commit for 1 year. ऐसा नहीं कि एक बार लीड बन गया और उसके बाद छोड़ दिया, कुछ काम ही नहीं किया. Okay, there are people above you who will be monitoring you, your progress and your work. And if you're not active, and if you're not doing anything, if you're not doing like the task you should be doing, then like GDSC leadership cancel भी होती है. बहुत सारे स्टूडेंट्स की GDSC leadership cancel होती है. ठीक है. Passionate about creating an impact in the community and strong technical understanding of computer programming or any software engineering. Mostly mechanical students अगर यहाँ पे कोई है, you will be requiring a little bit of software skills जहाँ पे programming वगैरह आ जाएगा. And even though not programming, you can go for designing and everything. ठीक है, तो these are some of the prerequisites. Akanksha, are your all doubts clear? What we are looking for like next GDSC lead? Yeah. Okay, next slide. सारी बातें हो गई कि क्या करना है, क्यों करना है. अब देखते हैं कैसे करना है. ठीक है. एप्लीकेशंस फेब में ओपन हो गए थे एंड द लास्ट डेट टू अप्लाई इज 31st of March. यू हैव एम्पल टाइम. ठीक है. एक महीने का टाइम इज मोर देन इनफ टू लाइक राइट 3 आंसर्स एंड शूट 1 वीडियो. एंड वेयर यू हैव टू अप्लाई, दिस इज द साइट के लिंक्स वगैरह तुम्हें मिल जाएगी. हम चैट बॉक्स में भी डाल देते हैं. आई विल गिव यू द लिंक इन चैट बॉक्स आल्सो. जस्ट अ सेकंड. सो तुम यहाँ इस साइट पे जाके यू कैन चेक आउट द फॉर्म्स. व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स हम आगे डिस्कस करेंगे ही उस रिगार्डिंग. बट स्टिल इफ यू वांट यू कैन विजिट हियर एंड लुक कि फॉर्म्स कैसे लगते हैं. सो एडवोकू इज द लाइक
है ना पोर्टल है जहाँ पे GDSA लीड्स के एप्लीकेशन फॉर्म्स हम के लिए हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तुम्हें सिर्फ साइट पे जाना है, यू हैव टू लॉग इन विथ योर गूगल अकाउंट्स, यूज द मेल आईडी जो तुम्हारा परमानेंट है। ठीक है, कोई भी मेल आईडी से मत करना, पेरेंट्स की मेल आईडी से अप्लाई मत करना। द सेम मेल आईडी, इस पे तुम्हें तुम्हारे आगे के सारे मेल्स रिसीव होंगे, योर इंटरव्यू कॉल्स, योर शॉर्ट लिस्टिंग कॉल्स, और फिर बीइंग अ GDSC लीड सेम मेल आईडी 1 ईयर के लिए आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। सो अप्लाई केयरफुली कि तुम्हारा जो भी मेल आईडी है उसे बरोबर से जो भी तुम्हारा परमानेंट है सिर्फ वही यूज कर रहे हो। ठीक है, सो दिस आर द की पॉइंट्स की लास्ट डेट 31 मार्च है। वी विल सी द एप्लीकेशन राउंड्स जो इस बार है। कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड? Yeah, it's good to have an education mail ID, but I don't think so. The colleges like us, the JSUA Tier 3, don't provide us with it. So I won't be confusing students with what is the education mail ID. But I will suggest that whatever your permanent mail ID is, try to use that. Okay, application rounds. So there are 3 rounds this year. When I was a lead or when I was applying for a lead, I just had 2 rounds. We had to apply the application form, and then the shortlisted candidates used to get an interview call, and then we used to go directly for the interviews. This year, we have a new process, which is the diagnostic test. टेस्ट सोच के ये मत सोचना कि SPPGT एकदम डिफिकल्ट एग्जाम्स नहीं है. दे आर जस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट टू चेक योर लाइक मॉरल वैल्यूज, योर प्रेफरेंसेस, लाइक तुम क्या मॉरल वैल्यूज प्रेफर करते हो, हाउ डू यू एग्जैक्टली फील अबाउट हेल्पिंग द कम्युनिटीज, एंड थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज OOP कंसेप्ट्स की. OOP पता है सबको क्या है? डू यू ऑल नो व्हाट इज OOP? नहीं, DSA नहीं पूछेंगे. इतनी डिफिकल्ट नहीं होने वाली है. इवन इफ देयर इज अ टेक्निकल एलिमेंट इन इट, तो भी वो काफी इजी रहेगा. ज्यादा से ज्यादा ऊप्स कंसेप्ट तक आएगा, उससे ज्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उससे ज्यादा नहीं आएगा. ओके, एंड वो भी लाइक कोडिंग नहीं करना रहेगा, जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस एंड MCQ टाइप क्वेश्चंस रहेंगे उसके अंदर. We even leads don't have the particular knowledge कि क्या रहेगा aptitude test में. We are still trying to figure that out. As soon as like हमें कुछ भी notifications मिलते हैं, so I will be letting you know about it. ठीक है, तो timeline is पहला application forms. Application forms की last date क्या है? What is the application form last date? जल्दी जल्दी chat box में. What is the last date for application forms? 31st March. Yes. So 31st March को application forms की last date है. It will end. Application date extend होने का wait मत करना. Mostly नहीं होती है. Like ऐसा जो होता है ना, अपने scholarship के forms आगे होते रहते prolong, but GDSC के forms नहीं होते prolong. So fill it. Like side भी crash हो सकती है. Mostly कभी कभी हो जाती है. So I will suggest कि 29-30 तक form fill करके रखो. Last date का wait. आफ्टर एप्लीकेशन फॉर्म क्या होगा? तुम्हारे एप्लीकेशन फॉर्म्स जाएंगे वहां पे रिक्रूटर्स को. दे विल बी रिव्यूइंग योर आंसर्स, योर वीडियोस, योर सोशल मीडिया लिंक्स. एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या रहता है अपन आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो एक एप्लीकेशन फॉर्म रहता है जो तुम फिल करोगे, वो वहां पर रिव्यू होगा. उसके बाद जिसका फॉर्म अच्छा लगता है उनको टेस्ट के लिए ईमेल्स आएंगे. यू विल गेट योर IDs, की मिलेगी तुम्हें, पासवर्ड्स मिलेंगे, सारी चीजें. एंड देन एक दिन सबकी टेस्ट साथ में रहेगी. यू विल बी गिविंग दैट टेस्ट. आफ्टर दैट टेस्ट पास करने के बाद जो बच्चे टेस्ट पास करेंगे उनको इंटरव्यू कॉल आएगा. ठीक है, इंटरव्यू में क्या होता है? इंटरव्यू में कंपनी एक्सपर्ट्स जो होते हैं, मोस्टली लाइक एज फार एज आई रिमेम्बर, जब मेरा था, मुझे कंपनी का नाम याद नहीं आ रहा है, बट एनीबडी जिसने यहाँ पे लीड्स के इंटरव्यू दिए थे, किसी को कंपनी का नाम याद है क्या? सो ऐसी कंपनी के रिक्रूटर्स रहते हैं, वहाँ के जो HR वगैरह रहते हैं, वो तुम्हारा इंटरव्यू लेते हैं. इट विल बी एन ऑनलाइन इंटरव्यू लाइक ऐसा जैसा प्लेसमेंट्स के होते हैं ना, वैसे नहीं. द इंटरव्यू इज टेकन टू गेट टू नो यू मोर. ठीक है, HR चाहता है कि तुम तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी उसके सामने रख दो कि ये मेरी पर्सनालिटी है, दिस इज द मॉरल वैल्यूज आई रिस्पेक्ट,
दिस इज द माई मोटिवेशन टू रन GDSC। और जितने आंसर्स तुम फॉर्म में लिखो, ओके, वो सारे आंसर्स रिक्रूटर के सामने होते हैं एंड देन वो तुम्हें क्रॉस क्वेश्चन करता है टू सी इफ यू हैव व्हाट यू आर राइटिंग एंड व्हाट यू आर स्पीकिंग, दोनों मैच करता है या नहीं। तो आंसर्स में झूठ नहीं लिखना है, जितना सच है उतना ही लिखो। नेवर लाई इन योर एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि वो वहाँ पे तुमसे प्रूफ रीडिंग कर लेंगे। सो आंसर्स लिखने की फर्स्ट टिप, डू नॉट लाई, डू नॉट यूज ChatGPT, डू नॉट यूज एनी काइंड ऑफ AI टूल्स टू राइट योर आंसर्स। ठीक है, तब अभी ChatGPT का बहुत ऐसा चल रहा है क्रेज, बट उससे आंसर्स नहीं लिखने। द फर्स्ट थिंग जो तुम्हारे आंसर्स के साथ होगी, इट्स लाइक उसका प्लेगैरिज्म चेक होता है। ठीक है, कि वो कितना, उसके अंदर प्लेगैरिज्म कितना है, तुमने किसी से कॉपी किया है, तुमने पास GDSC लीड्स के आंसर्स कॉपी किए हैं, या तुमने किसी और का तुम यूट्यूब पे गए, तुमने दूसरों की वीडियोस देखे वहां से आंसर्स कॉपी किए। सो फर्स्ट थिंग इज प्लेगैरिज्म चेक, नेवर लाई, नेवर कॉपी। ठीक है, सारी चीजें इंटरव्यू में दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, क्योंकि इंटरव्यूज में क्या क्या होता है, इंटरव्यूज में दे विल चेक योर सॉफ्ट स्किल्स, तुम इंटरेक्ट कैसे कर रहे हो, हाउ इज योर आई कॉन्टैक्ट विद देम, एंड देन द सेकेंड थिंग विल बी प्रूफ रीडिंग। तुम्हारी पूरी टेस्ट ली जाएगी कि जितना तुमने लिखा है उतना आता है या नहीं आता है। इफ यू हैव लाइक जस्ट लाइक इफ आई शेयर माई एक्सपीरियंस, मैंने फॉर्म में लिखा था दैट आई हैव डिलीवर्ड अ फ्यू सेशंस बिफोर। ठीक है, कि मैंने पहले सेशंस लिए हैं एंड आई रोट सम ऑफ द नेम्स, कि मैंने इन टॉपिक्स पे सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर मैंने पहले सेशंस डिलीवर किए, कम्युनिटी वर्क किया है। सो वाइल माई इंटरव्यू, द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी कि तुमने कौन सी कॉलेज के लिए वो सेशन डिलीवर किया था, कितने स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स का क्या रिस्पॉन्स था, तुम्हारे कौन से टॉपिक्स थे जिस पे तुमने वो लाइक सेशन डिलीवर किया था, एंड एवरीथिंग वहाँ पे। इवन ही टुक द कॉलेज नेम, उसने खुद रिसर्च किया कि मैं सच बोल रही हूँ या नहीं, और सारी चीज़ें। इफ़ यू आर राइटिंग इन योर एप्लीकेशन फॉर्म्स दैट यू हैव बिल्ड दिस बिग प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग, जब इंटरव्यू में जाओगे वो तुम्हें बोलेगा स्क्रीन शेयर करो और प्रोजेक्ट्स दिखाओ, फिर वो तुम्हारी गिटहब की प्रोफाइल लिंक्स मांगेगा एंड देन तुमसे पूछेगा तुम लाइक व्हेन आई वाज गिविंग माय इंटरव्यू, मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स को ओपन करने के लिए कहा गया था, मैंने उन्हें रन करके दिखाया, एंड इवन आफ्टर लाइक जब मैंने रन किया था देयर वर फ्यू ब्लॉक ऑफ कोड्स जो शायद थोड़े ट्रिकी होते हैं, या फिर इवन इफ दे डोंट नो एनीथिंग, लाइक HR को टेक्निकल नहीं आता होगा ना, फिर भी वो तुमसे इतने कॉन्फिडेंस में टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा कि ये कीवर्ड या ये ब्लॉक ऑफ कोड क्या काम करता है, कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कोड तुमने ही लिखा है कि नहीं। दिस इज द लेवल ऑफ लाइक कॉन्फिडेंस से इतना प्रेशर डाल के सामने वाला तुमसे पूछेगा। सो दैट इज द लाइक पीयर प्रेशर हैंडलिंग समथिंग जो तुम्हें इंटरव्यू में रखने की है। सो वो कब आएगी, जब तुम आंसर्स में झूठ नहीं बोलोगे। इफ यू हैव रिटन एवरीथिंग एज ट्रूथ एज इट इज, वहाँ पे इंटरव्यूज में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, एप्लीकेशन राउंड्स में किसी को कोई प्रॉब्लम या कुछ डाउट्स, इंटरव्यू में क्या होता है या और कुछ डाउट्स, एनीथिंग एल्स? किसी को डाउट्स है क्या? ओके, ऑल क्लियर, नो डाउट्स, ग्रेट। ओके, वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, जहाँ पे हम एप्लीकेशन फॉर्म में एक डीप डाइव लेते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म सबको क्लियरली विजिबल है? नहीं भी होगा तो ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, बाकी तुम साइट दी है वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट थिंग तुमसे पूछी जाती है योर पर्सनल डिटेल्स। योर पर्सनल डिटेल्स इंक्लूड योर जेंडर, नेम, एंड देन देयर इज अ कॉलम फॉर नॉमिनेशन कोड जो कि लीड्स प्रोवाइड करते हैं। इफ यू डोंट हैव दैट नॉमिनेशन कोड, दैट इज एन ऑप्शनल फील्ड, तुम्हें उसको वैसा के वैसा छोड़ना है एंड देन आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, नॉमिनेशन कोड मोस्टली सबके पास नहीं रहेगा, तो यू हैव टू कीप दैट फील्ड एम्प्टी और आगे कंटिन्यू करने का है। द फर्स्ट थिंग इज योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, रियली वेरी इजी, सब लोग अभी बैठे बैठे भी कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर्म्स ऑटो सेव होते हैं, तो मोस्टली लाइक इफ यू वांट तुम अभी सेव करके बाद में उसको कंटिन्यू कर सकते हो। सेकेंड थिंग इज चैप्टर डिटेल्स। चैप्टर क्या होता है?
जैसे बुक में अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, जीडीएससी में सारे कॉलेजेस को चैप्टर बोलते हैं. सो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? जेएसपीएम जयवंतराव सावंत कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे. भीवराबाई का बीएसआईटीआर का नाम क्या रहेगा? जेएसपीएम भीवराबाई सावंत कॉलेज ऑफ रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो भी है. ओके, सो ऐसे तुम्हारे कॉलेज के नेम्स जो होते हैं, इट इज योर चैप्टर नेम. मैक्सिमम सबके चैप्टर नेम्स वहाँ पे लिस्टेड है. चैप्टर नेम वहाँ पे किसके लिस्टेड होते हैं? जिनके कॉलेजेस में ऑलरेडी जीडीएससी एग्जिस्ट करता है. इफ अगर तुम्हारे कॉलेज में जीडीएससी एग्जिस्ट नहीं करता है, देन देर इज अ ऑप्शन जहाँ तुम तुम्हारा चैप्टर का जो नेम है उन्हें सजेस्ट कर सकते हो दैट कैन यू प्लीज ऐड दिस चैप्टर. लाइक तुम अगर फर्स्ट लीड हो तुम्हारी तरफ से, ठीक है, तो यू कैन सजेस्ट दैट नेम एंड दे विल ऐड दैट कॉलेज इन द लिस्ट. सो जेएससीओई के स्टूडेंट्स को कौन सा चैप्टर नेम यूज करने का है? वहाँ पे काफी सारे जेएसपीएम्स के कॉलेजेस के नाम रहेंगे, कंफ्यूज मत होना. तुम्हारे चैप्टर का नाम करेक्टली सिलेक्ट करना, नहीं तो तुम किसी और ही कॉलेज के लीड बन जाओगे. ओके, डू आई नीड टू? नो, you don't have to take any approval from anyone. You can inform your teachers that you are applying somewhere. ठीक है, you can like approach your whoever is your GFM अगर होता है, या फिर गार्डियन टीचर जो होता है, या HODs होते हैं, you can approach them. You can say them कि मुझे ये टेक्निकल क्लब लीड करना है और मैं चाहता हूँ कि ये टेक्निकल क्लब हमारे कॉलेज में आए, एंड सो दैट आई एम लाइक मैं ये कॉलेज, अपने कॉलेज का नाम यहाँ पे प्रपोज कर रहा हूँ. तुम्हें सिर्फ इतना उनको इन्फॉर्म करना है. एंड लाइक कॉलेजेस मोस्टली कैन नॉट रेस्ट्रिक्ट यू फॉर डूइंग दिस, क्योंकि इट इज एन एस्टीम टू हैव जीडीएससी क्लब इन योर कॉलेज. सो मोस्टली कोई भी कॉलेज आपको मना नहीं करेगा उनका नाम सजेस्ट करने के लिए. इफ यू वांट यू कैन जस्ट इन्फॉर्म देम, नेवर आस्क फॉर परमिशंस, नहीं तो आंसर इज ऑलवेज नो. सो लाइक परमिशन मत मांगो, जस्ट इन्फॉर्म देम यू आर डूइंग समथिंग. ओके, सो चैप्टर डिटेल समझ में आई? चैप्टर डिटेल इज नथिंग बट तुम्हें तुम्हारे कॉलेज का नाम डालना है. फॉर जेएससीओ स्टूडेंट्स इज जेएसपीएम्स जयवंतराव सावंत कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे. ओके, और बाकी के फॉर लाइक बीएसआईटीआर स्टूडेंट्स इट्स भीवराबाई सावंत कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज 2 सेक्शन से आगे. हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस. The first one is social media links and the second one is the answers. Okay, just give me a minute. Okay, sorry for the interruption. ठीक है, 2 ऑप्शंस है यहाँ पे. इसके 2 मेन तुम्हारे फॉर्म के सेक्शंस है यहाँ पे. ठीक है, the first one is social media links and the second one is your answers and your video. social media links क्यों important है? social media links तुम्हारी social existence जो है, like if you are in community leader, तुम कितने तुम्हारी नॉलेज बाकी सबके साथ शेयर करते हो, तुम्हारे स्टूडेंट्स के साथ, तुम्हारी टीचर्स के साथ, तुम्हारी लोकल कम्युनिटी में, लोकल कॉलेज में. अगर वहाँ पे लाइक फेसबुक दिया है, लिंक्डइन दिया है और गिटहब दिया है, तो तुम्हारे कितने फॉलोवर्स है, तुम्हारा लिंक्डइन अकाउंट कितना एक्टिव है, सारी चीज़ें स्टडी की जाती है. लाइक आर यू इवन अ पब्लिक पर्सन, आर यू एन इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट? ठीक है, इंट्रोवर्ट लोग रहते हैं, बट इफ लाइक तुम्हारी नॉलेज किसी के साथ शेयर ही नहीं करते हो, तुम कभी कुछ पोस्ट ही नहीं करते हो, यू आर सोशली कंप्लीटली इनएक्टिव, तो इट्स नॉट एन गुड साइन फॉर बीइंग अ लीडर. ठीक है, सो द फर्स्ट सेक्शन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट आई विल रिकमेंड इज सारी सोशल मीडिया लिंक्स जितनी मैक्सिमम पॉसिबल है उतनी फिल आउट कर दो. इवन इफ लाइक तुम्हारे वो अकाउंट्स एक्टिव नहीं है, फिर भी फिल आउट करके रखो. यू हैव टाइम. फॉर्म्स रिव्यू होंगे, जब तक तुम्हारा इंटरव्यू का टाइम आएगा, काफ़ी टाइम है, तब तक अपन हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उन सबको रिकवर कर सकते हैं. अ मंथ इज मोर देन इनफ कि तुम तुम्हारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में तुम्हारा जो सोशल एग्जिस्टेंस है उसको अच्छे से इस्टेब्लिश कर सको. ठीक है, सो इवन इफ लाइक तुम्हारा न्यू लिंक्डइन अकाउंट है, न्यू ट्विटर का अकाउंट है, डू नॉट वरी, लिख तो दो, अप्लाई कर दो. अपन उसको जब तक तुम्हारा फॉर्म उसकी डेस्क तक पहुंचेगा तब तक अपन उसको एक्टिव कर लेंगे.
ठीक है, मेरा भी इतना एक्टिव नहीं था. इवन टुडे मेरा ट्विटर अकाउंट इज कम्प्लीटली इनएक्टिव. आई एम नॉट एक्टिव ऑन ट्विटर. कभी कभी एक आधी पोस्ट कर दी तो कर दी. आई एम एक्टिव ऑन लिंक्डइन. लिंक्डइन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ये जितने भी ऑप्शंस दिख रहे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं तुम्हें मार्क करके दूं इज विल बी योर वेबसाइट. इफ यू आर एन वेब डेवलपर, या फिर अगर तुम काफी अच्छे डेवलपर्स हो या तुम थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल के हो, तो एक पोर्टफोलियो. मेरा नहीं था, बट अगर तुम्हारे पास है तो वो जरूर इंक्लूड करना है यहाँ पे. द मोस्ट टू इम्पोर्टेंट विल बी गिटहब एंड लिंक्डइन. ठीक है, गिटहब पे तुम्हारे थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स रहेंगे तो भी चलेगा, ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं है, बट एक गिटहब अकाउंट सबके पास होना चाहिए. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज गिटहब, सेकंड वन इज लिंक्डइन. लिंक्डइन अकाउंट इज लाइक योर, जैसे ना एज हो जाती है तो फिर कैसा बायोडाटा बनाते शादी का, वैसा इट इज लिंक्डइन. तुम्हारी एज हो गई है अब, और अभी तुम्हें तुम्हारा एक प्रोफेशनल बायोडाटा क्रिएट कर लेना चाहिए. ठीक है, पेरेंट्स इसके लिए नहीं बोलेंगे, बट हम सीनियर्स बता रहे हैं. एंड इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम वहां पे तुम्हारी एग्जिस्टेंस, तुम्हारा एक फुटप्रिंट क्रिएट करो. ठीक है, सो लिंक्डइन अकाउंट एंड गिटहब अकाउंट, दिस आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. अब अगर तुम दोनों, तुम्हारे पास ये दोनों चीजें नहीं है तो क्या करना है. फर्स्ट थिंग, गिटहब का सेशन आ रहा है अभी 10th को. ठीक है, 10th ऑफ मार्च को गिटहब का सेशन रहेगा. एंड देन लिंक्डइन सेशन इज नॉट येट लाइक फिक्स कि उसकी डेट्स क्या रहेगी, बट वी आर प्लानिंग टू कीप एन सेशन ऑन लिंक्डइन. सो तुम्हारे जितने भी अकाउंट्स का सेटअप वगैरह है हम उस मूवमेंट पे करा देंगे. ठीक है, फॉर्म फिलअप करने की घाई मत करना. यू हैव एम्पल टाइम. लास्ट वीक ऑफ मार्च में प्रिपेयर योर आंसर्स सब रेडी करके रखो. बस फिल करके सबमिट मत करो. लास्ट डे तक रुको. एंड तुम्हें तुम्हारे आंसर्स में क्या चेंजेस करने हैं, तुम्हें तुम्हारी सोशल मीडिया लिंक्स में क्या करने के हैं, सारी चीज़ें सब कुछ बना के रखो. एक डॉक्यूमेंट फाइल बना लेने का, गूगल डॉक्स में एक फाइल बनाने का, GDSC लीड एप्लीकेशन. ओके, वहाँ पे यू कैन इंक्लूड ऑल योर आंसर्स, ऑल योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्स एंड योर वीडियो. ठीक है, सोशल मीडिया लिंक समझ गया सबको, कितनी बनानी है, क्या क्या करने का है एंड एवरीथिंग. सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे आएंगे अभी अपन, विच इज आंसर्स. सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे तुमसे. ठीक है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन. सबके लिए ब्लर है या मेरे लिए ब्लर है सिर्फ ऊपर जो क्वेश्चंस का सेक्शन है? Jasmine, actually the image in the PPT is blurred. Okay, it is blurred in the PPT. अच्छा, फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता है, बट आई विल टेल यू कि क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, आई विल रीड फॉर यू. मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं. यू कैन विजिट द फॉर्म एंड यू कैन ऑल्सो व्यू इट ओवर देयर. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज what is your motivation to run a GDSC club at your institution? ठीक है, first question is about motivation. First question is about motivation. कि तुम्हें क्या मोटिवेट करता है, तुम्हें लीड क्यों बनना है. इज इट जस्ट द मटेरियलिस्टिक थिंग्स, तुम गुडीज देख के, या हाँ भाई लीड की तो एकदम हवा रहती है पूरे कॉलेज में, तो इस चीज़ों के लिए लीड बनना है, या फिर क्या है तुम्हारा मोटिवेशन लीड बनने का. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज टू चेक योर मोटिवेशन. Second is, what is your experience in leading a project or a team? So, second question is experience. तुम्हारा previous experience क्या है टीम लीड करने का या कोई प्रोजेक्ट लीड करने का. अब इन आंसर्स में मोटिवेशन तो तुम्हारा सबका पर्सनल रहेगा, सबके पर्सनल इश्यूज रह सकते हैं. इफ लाइक मैं मेरा आंसर बताऊं, सो माय आंसर वाज कि जब मैं मेरे फर्स्ट ईयर में थी, I didn't got the opportunities which I deserved, or like जितनी मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली. तो this was my motivation कि like if I'm not getting the opportunity, I will generate the opportunity. I will generate for myself and even for others. जो मुझे नहीं मिला है वो बाकी सबको मैं दूंगी, ऐसा. This was my motivation and मेरा complete answer बस इसी एक चीज़ पे बेस था कि जितनी अपॉर्चुनिटीज मुझे नहीं मिली है, मुझे उतनी प्रोवाइड करने की है बाकी स्टूडेंट्स को. दिस वाज माय मोटिवेशन टू वर्क. ओके, सेकंड थिंग इज एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस में क्या लिखना है. इन एक्सपीरियंस यू हैव टू राइट अबाउट प्रोजेक्ट और टीम लीडिंग एक्सपीरियंस लिखना है. तुमने कोई हैकेथन अटेंड करी रहेगी, इवन इफ लाइक जो कॉलेज लेवल की कॉम्पिटिशन्स होती है उसमें तुमने लीड किया है. एवरीवन हैज PBL प्रोजेक्ट्स इन द सब्जेक्ट.
जितना मुझे पता है सबको पीवीएल प्रोजेक्ट्स रहते एंड हर सेमेस्टर रहते। तुम उसके टीम लीडर थे, तो तुम्हारे जितने भी एक्सपीरियंसेस है, तुमने स्कूल में कुछ लीड किया है, स्कूल के फेस्ट ऑर्गेनाइज किए हैं, अल्दो वो फेयरवेल ही क्यों नहीं ऑर्गेनाइज किया तुमने, तुम्हारे पास जो भी एक्सपीरियंस है राइट इट डाउन। तुमने उसमें से क्या सीखा, इवन यू कैन राइट योर मिस्टेक्स कि मैंने ये मिस्टेक करी थी एंड देन मैंने उसमें से ये सीख के नेक्स्ट टाइम ये इम्प्रूव किया है। ओके, you can talk about your mistakes, your learnings, your shortcomings, तुम्हें कितने struggles आए, obstacles क्या क्या चीज़ें आई। ओके, इन माई एप्लीकेशन फॉर्म मैंने एक्सपीरियंस में मैंने मेरा इंटर्नशिप एक्सपीरियंस लिखा था थोड़ा सा, एंड देन उसके अलावा मैंने प्रोजेक्ट के पीबीएल के एक्सपीरियंसेस लिखे थे। एंड एवरीवेयर जहाँ पे मैंने कहीं पे भी लीड लिया है, मेरे वो सारे एक्सपीरियंसेस थे। एंड इवन पता मैंने एक चीज़ इंक्लूड करी थी विच वॉज दैट आई ऑलवेज टेक लीड इन माई फ्रेंड सर्कल। ठीक है, कि जब हमारा फ्रेंड सर्कल होता है या फिर जब हमारे फ्रेंड्स हम बैठ के कुछ नया सीखने का ट्राई करते हैं, सो आई एम द वन जो कि आई ट्राई टू टेक द लीड कि मैं उस पर्टिकुलर थिंग को जस्ट लाइक तुम लोगों ने भी डिसाइड किया रहेगा। हम पता है फॉर्म सेकेंड ईयर में जो हमारा फ्रेंड सर्कल था, हम डिसाइड करने हम एक टाइम पे बैठेंगे और सब लोग कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे, जो कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ बट किया तो था ना इनिशिएट। हम लिख सकते हैं ना वो, हमने उसमें से सीखा कि प्लान बनाना ईजी है, एग्जीक्यूट करना डिफिकल्ट है, एंड नेक्स्ट टाइम उसको एग्जीक्यूट करने पे ज़्यादा फोकस किया, ना कि प्लानिंग करने पे। ठीक है, दिस एन एक्सपीरियंस एंड यू कैन राइट इट डाउन। इवन इफ यू आर लाइक तुम्हारे ग्रुप के लीडर हो ना तुम, यू कैन राइट इट डाउन बिकॉज लीडरशिप इज अ स्किल एंड इट कैन बी परफॉर्म एनीवेयर एंड एवरीवेयर। सो 2 क्वेश्चंस हो गए। थर्ड इज व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विद टेक्नोलॉजी। ठीक है, योर टेक्निकल एक्सपर्टीज। दिस इज टेक्निकल। 3 क्वेश्चंस है, मोटिवेशन, एक्सपीरियंस, टेक्निकल। टेक्निकल में यू हैव टू राइट तुम्हें कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती है, तुम्हें कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज करते आते हैं, कितने सॉफ्टवेयर्स के नाम तुम्हें पता है, सब कुछ लिख दो। बड़े बड़े वर्ड्स लिखने की कोशिश करो, जितना हो सकता है वहाँ पे उतना लिखो, पर तुम्हें उसका आइडिया रहना चाहिए कि तुम क्या लिख रहे हो। इंटेलिजेंट आइडिया, जावा की प्रैक्टिस करते हो या फिर एक्लिप्स के ऊपर है ना अगर तुम प्रैक्टिस करते हो, वीएस कोड के ऊपर कुछ प्रैक्टिस करते हो, इफ़ यू आर अ पाइथन प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, पाइचाम के ऊपर कुछ प्रैक्टिस करते हो, दिस ऑल आर द टूल्स विच यू कैन मेंशन ओवर देयर। वहाँ पे गिटहब मेंशन करो दैट यू नो गिटहब, इवन इफ यू डोंट, अगर तुम वहाँ पे कुछ आज लिख दे रहे हो जो तुम्हें नहीं पता है तो सीख लो, लिख दो एंड सीख लेना उसको बाद में। जब तक इंटरव्यू आएगा तब तक यू विल बी प्रिपेयर्ड कि तुम्हें गिटहब आता है और जितनी चीज़ें तुमने वहाँ पे लिखी है, लिस्ट आउट करी है, उतनी सारी चीज़ें सीख लेना बाद में। ठीक है, इवन इफ यू डोंट नो इट टुडे, राइट इट डाउन बट लर्न इट बिफोर इंटरव्यूज, क्योंकि इंटरव्यूज में हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, सो दिस आर द 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके आंसर्स तुम्हें मोस्टली 200 वर्ड्स तक ही लिखना, ज़्यादा उसको स्ट्रेच नहीं करना है। ठीक है, आंसर्स और कैसे अच्छे से लिखने के हैं, सैम्पल वीडियोस रिसोर्स फाइल में सब कुछ इंक्लूडेड है। वीडियो कैसे शूट करनी है आई विल बी टेलिंग। मैं अभी जितनी चीज़ें तुम्हें वर्बली बता रही हूँ, इट्स गुड कि अगर यहाँ कोई नोट्स निकाल रहा हो, एंड इवन इफ लाइक तुमने नोट्स नहीं निकाले, रिसोर्स फाइल में सब लिखा हुआ है। So resource file will be like your guide even if I am not there. Okay, video, the most important thing of complete application form। वो कुछ नहीं देखेंगे, तुम्हारी सोशल मीडिया लिंक्स नहीं देखेंगे, तुम्हारे आंसर्स नहीं देखेंगे, सबसे पहले तुम्हारी वीडियो चेकआउट होती है। वीडियो में तुम्हें एग्जैक्टली सामने देख के एचआर्स को इतना एक्सपीरियंस होता है दैट दे कम टू नो कि सामने वाले को कितनी नॉलेज है अबाउट समथिंग विच ही इज टॉकिंग अबाउट। वीडियो में तुम्हें कुछ भी रॉकेट साइंस की बात नहीं करनी है, यू हैव टू टॉक अबाउट योर सेल्फ। तुम्हें तुमसे ज़्यादा कोई नहीं पहचानता है, नॉट इवन रिक्रूटर। उसे रियलाइज कराओ कि भाई तुम्हारी पर्सनैलिटी क्या है, ही हैज़ नेवर सीन यू। तुम्हारी एक 90 सेकेंड्स की वीडियो है, 90 सेकेंड्स इज़ 1.5 मिनट, उतना 1.5 मिनट देख के वो तुम्हें जज कर लेगा कि लाइक तुम्हें एग्जैक्टली खुद के बारे में कितना पता है, खुद की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के बारे में कितना पता है, एंड बाकी सारी चीज़ें। सो वीडियो इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वीडियो बनाने की टिप्स, फर्स्टली लैंडस्केप मोड में शूट करने का।
आई विल रिकमेंड, अगर लैपटॉप से शूट कर सकते हो तो लैपटॉप से करो. इफ लैपटॉप की कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं है, मोबाइल से करने वाले हो, तो उसको लैंडस्केप. ओके, व्हाट इज लैंडस्केप? ऐसा, दिस इज द लैंडस्केप मोड, दिस इज वर्टिकल एंड दिस इज द लैंडस्केप. क्यों रखना है? एचआरस मैक्सिमम बड़ी कंपनीज में काम करते हैं, वो तुम्हारी वीडियोस नहीं देखने वाले, वो तुम्हारी वीडियोस लैपटॉप पे व्यू करेंगे. एंड जब वो पोर्ट्रेट मोड में रहती है ना, तो इट लाइक वो इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं देती है. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज ना, उसको लैंडस्केप में करना है. सेकेंड थिंग, ऑफ कोर्स बी ऑथेंटिक, शो योर रियल सेल्फ. फेक एक्सेंट्स नहीं यूज करनी है. जबरदस्ती के बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स जो तुम्हें बोलते ही नहीं आ रहे, वैसा कुछ भी नहीं करना है. कीप इट सिंपल, सोबर, जितना इजी हो सके उतना. ठीक है, एक स्क्रिप्ट लिखो जहाँ पे तुम क्या क्या इंक्लूड करने का उसके अंदर, उन्हें पूरा आइडिया आ जाना चाहिए तुम्हारी पर्सनालिटी के बारे में. तो तुम्हारा इंट्रोडक्शन, राइट फ्रॉम योर नेम, योर कॉलेज, तुम किस ईयर में स्टडी कर रहे हो, सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई. ठीक है, उसके बाद में फिर तुम्हारी टेक्निकल एक्सपर्टीज क्या है, तुमने तुम्हारा टेक्नोलॉजी के साथ कितना एक्सपीरियंस है, तुम्हारा कम्युनिटी वर्क कितना किया है. कम्युनिटी वर्क में मैं मेरी वीडियो की लिंक ऑफ कोर्स सबके साथ शेयर करूंगी, एंड यू कैन सी मैंने एग्जैक्टली कम्युनिटी वर्क कुछ भी नहीं किया था. ठीक है, मैंने लाइक ऐसा जैसा मैं अभी बता रही हूँ कि मैंने सेशन लिया है या फिर मैंने यहाँ पे वॉलेंटियर किया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था. आई वॉज जस्ट द कम्युनिटी मेंबर, और वो भी मैं अपने कॉलेज की नहीं, मैं दूसरे कॉलेजेस की कम्युनिटी मेंबर थी. एंड मैंने उनके कैंपेन्स में पार्टिसिपेट किया था, एंड दिस इज ऑल्सो कम्युनिटी वर्क. ठीक है, लाइक ये एक प्रकार का कम्युनिटी वर्क रहता है, दैट यू आर एक्टिव इन अ कम्युनिटी. किसी और ने तुम्हारे लिए कुछ ऑर्गेनाइज किया है, तो तुम उसको उतना सीरियसली ले रहे हो, यू हैव लर्न समथिंग. ओके, मैंने मेरे एंड्रॉइड स्टडी जैम्स, फ्लटर कैंपेन्स, हैक्टोबर फेस्ट, ऐसी बहुत सारी जितनी भी मेरी ये थी है ना एक्सपीरियंसेस थे, या जितने भी इवेंट्स में मैंने पार्टिसिपेट किया था, मैंने वो सारे उनके सर्टिफिकेशंस एंड एवरीथिंग मैंने वहाँ पे मेंशन किया था वीडियो के अंदर, दैट आई एम एन एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ कम्युनिटी. सो यू कैन डू दैट. ठीक है, और वीडियो में क्या इंक्लूड करने का? कीप इट शॉर्ट. स्क्रिप्ट लिखने को बोला है तो ऐसा नहीं कि उसको मगअप कर लिया, उसे सिर्फ पढ़ लेना है एंड देन उसको एक नेचुरल फ्लो में डिलीवर करने का है. ठीक है, जितना हो सके वीडियो को कम्प्लीटली नेचुरल रखने की कोशिश करना. सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट आई गेस द वीडियो शूट करने के लिए. दिस इज एवरीथिंग यू विल नीड. डिस्ट्रैक्शंस कम रखने के, तुम्हारा बैकग्राउंड अच्छा रहना चाहिए. दिस आर द लाइक जस्ट इन जनरल आइडियाज हैं कि नॉइज नहीं रहनी चाहिए, बैकग्राउंड नॉइज, लाइक फैन की नॉइज आ रही है, रूममेट्स की नॉइज आ रही है, रूममेट्स हंस रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए. ठीक है, तो एक काम प्लेस में अच्छे बैकग्राउंड के साथ, विच इज नॉट टू न्यूट्रल, नॉट टू डिस्ट्रैक्टिंग, एक न्यूट्रल बैकग्राउंड तुम ले सकते हो. यू कैन हैव कर्टन्स बिहाइंड यू, या फिर क्लियर वॉल ले लो. इफ यू हैव रियली वेरी फैंसी होम, तो फिर जो डिजाइन यूनिट्स रहते हैं, सो हैव अ गुड बैकग्राउंड. एंड इफ यू आर एन हॉस्टेलर, अ क्लियर वाइट वॉल इज मोर देन इनफ टू बी आस्क्ड फॉर. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन फॉर्म. किसी को कुछ भी डाउट्स है तो बताओ. एनी डाउट्स? और कुछ, क्या मैं कुछ मिस तो नहीं किया? ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. Okay, we have a YouTuber with us in the meet, which is Guru Prasad Vaidya, and he has a tip for you, which is shoot videos in the opposite side of the sunlight for the better quality. Okay, you can, of course, like video se related kuch bhi doubts rahe, you can contact Guru Prasad Vaidya. Okay, what is the importance of referral code? रेफरल कोड इज समथिंग जो कि तुम्हारा जो लीड्स होते हैं वो नेक्स्ट लीडर को अपॉइंट करने के लिए, इट जस्ट गिव्स यू अ स्टार ऑन योर एप्लीकेशन फॉर्म, बट आई डोंट थिंक सो कि वो कुछ इम्पैक्ट करता है. एज फार एज आई नो, आई डेंट हैव अ रेफरल, और जो मेरे कंपिटिटर्स थे उनके पास रेफरल था. तो यू कैन सी आई एम अ
I was selected without a referral over the students they had referrals. ठीक है, तो रेफरल आई डोंट थिंक सो रियली मैटर्स. तुम्हारी वीडियो, तुम्हारा इंटरव्यू इज एवरीथिंग विच विल बी डिफाइनिंग योर फ्यूचर. Okay, Akanksha is bit worried about the technical part. Akanksha, I guess like if you are confident enough, just apply for it. And technicalities is something like it is a never ending part. ठीक है, like अभी भी मुझे भी पूछेंगे, I am not confident in my technical field, क्योंकि you cannot learn everything ना. You should be a beginner or intermediate level learner जिसको एक प्रोग्रामिंग की नॉलेज है. Like if I am a lead, मुझे डिफरेंट लाइक टेक्निकलिटी क्यों जरूरी है, मैं वो क्रोनोलॉजी समझाती हूँ आपको. कि इफ आई एम अ लीड, मुझे कैंपेन्स होस्ट करने रहते हैं. ठीक है, मेरे पास क्लाउड कैंपेन आया, वेब कैंपेन आया और एंड्रॉयड. मेरा डोमेन इज एंड्रॉयड डेवलपमेंट. मुझे एंड्रॉयड के बारे में सब पता है, पर साइबर और वेब के बारे में मुझे थोड़ा थोड़ा पता है. वेब में HTML CSS नाम की कोई चीज़ें एग्जिस्ट करती है, क्लाउड कंप्यूटिंग में कुछ तो एग्जिस्ट करता है. उनकी टेक्नोलॉजीज क्या है, मुझे उस सब चीज़ों के नाम पता है. मैं उनकी टेक्निकलिटीज़ में नहीं इंटरेस्टेड हूँ. बट मुझे ये क्यों पता रहना चाहिए, इफ़ आई एम एवर होस्टिंग समथिंग, मैं अगर किसी को अप्रोच कर रही हूँ, आई शुड नो कि वो मुझे या ऑडियंस को तो नहीं फूल कर रहा है. इफ़ आई एम कॉलिंग अ स्पीकर एंड ही इज़ डिलीवरिंग समथिंग एंड आई एम क्लूलेस कि वो बात क्या कर रहा है, दिस इज़ नॉट डन ना. तो स्टूडेंट्स को क्या ही समझेगा अगर मैं समझ नहीं सकती हूँ. सो लाइक थोड़ा सा एक टेक्निकलिटी का आइडिया होना चाहिए, सो दैट यू कैन जज कि सामने वाला या तुम खुद कितना दूसरे को सिखा सकते हो. ठीक है, दिस इज वाई टेक्निकल साइड इज नीडेड. Okay, if you are not even in touch with the languages, but still एक language तो हमें like as far as I remember you are from ENTC department and like हर department में अगर मुझे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का इतना आइडिया नहीं है, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स को टेक्निकल लैंग्वेजेस सिखाई जाती है. देयर आर लाइक हर सेमेस्टर में हमें एक टेक्निकल लैंग्वेज रहती है. सो इट्स गुड टू हैव लाइक तुम सिर्फ उसी में कॉन्सेंट्रेट कर लो ना, and like have a kick which is of yours. Like मेरी जावा थी, so I didn't give so much attention to C++ or anything else embedded languages. So अभी जब थर्ड ईयर में जावा आई तो like it was a piece of cake for me. जब वो मुझे वहाँ पे उसकी स्टडीज करने की थी या जब भी मुझे एग्जाम्स देने की थी, it was really very easy for me. So तुम्हारी एक लैंग्वेज चूज करो and then you can continue with it. सारी लैंग्वेजेस सेम होती है. दिस इज द बॉटम लाइन. सब में OOP कंसेप्ट सेम है. इनहेरिटेंस जो C++ में हो रहा है, सेम इनहेरिटेंस जावा में होने वाला है. लैंग्वेजेस में डिफर क्या करता है, थोड़े बहुत अगर फीचर्स छोड़े तो लैंग्वेजेस में डिफर करता है सिंटैक्स. ओके, इलेक्ट्रिकल, आई एम स्टूडेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल ब्रांच. आई हैव नॉलेज अबाउट टेक्निकल लैंग्वेजेस बट आई एम वरीड अबाउट माई सॉफ्ट स्किल्स. वैष्णवी, सॉफ्ट स्किल्स इज समथिंग जो कि तुम एक्सपीरियंस से लर्न करते हो. एक्सपीरियंस कब आता है, जब तुम स्टेज पे आते हो. ठीक है, तो आई गेस यू शुड स्टार्ट लाइक पार्टिसिपेटिंग मोर. तुम्हें लाइक आई ऑलवेज से इन माई सेशंस सेमिनार्स कि अगर तुम्हें कुछ भी डिलीवर करना है, तुम्हें एक स्टेज चाहिए जहाँ पे तुम जस्ट ट्राई आउट करना चाहते हो तुम्हारी नॉलेज को या तुम्हारे कॉन्फिडेंस को. GDSC इज देयर फॉर यू. मैं सबको बोलती हूँ, तुम आओ, तुम्हारा टॉपिक लेके आओ. इवन जब मैं मेरा इंटरव्यू देने गए, आई वॉज स्केयर्ड फॉर माई इंटरव्यू. लाइक इवन लाइक जस्ट लाइक वैष्णवी, आई हैड माई टेक्निकल स्किल्स विद मी. आई वॉज कॉन्फिडेंट कि लाइक मेरे पास इंटरमीडिएट लेवल टेक्निकल स्किल्स है, बट आई वॉज स्केयर्ड अबाउट माई सॉफ्ट स्किल्स. तो सॉफ्ट स्किल्स का क्या करने का अभी, तो वॉट माई मेंटर्स एंड माई कलीग्स सजेस्टेड मी वॉज कि तू एक सेशन डिलीवर कर. And I delivered a session on book. I have a really very good habit of reading books. So जो मैंने recently book read करी थी, मैंने it was on good habits, the atomic habits, सुना रहेगा नाम. मैंने मेरा first life का session atomic habits के ऊपर deliver किया था, in which I gave a summary of book, जिसके लिए audience बैठी थी. They were listening because I was saying something which was beneficial for them. उन्हें बुक नहीं रीड करनी पड़ेगी, उन्हें 1 घंटे के सेशन में पता चल जाएगा कि बुक में क्या लिखा है. तो ऑडियंस लाने की जिम्मेदारी हमारी है. यू शुड जस्ट हैव गट्स टू लाइक तुम उसको वहाँ पे परफॉर्म कर सको. एंड दैट वन सेशन गेव मी कंप्लीट कॉन्फिडेंस. लाइक
जितना कॉन्फिडेंस मुझे आया था कि मैं इवेंट इंटरव्यू क्रैक कर सकती हूँ, इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन सेशन जो मैंने एक दिन पहले लिया था। लाइक अगर कल मेरा इंटरव्यू है तो आज मैं सेशन डिलीवर कर रही थी। इट वॉज संडे एंड आई डिलीवर्ड माई सेशन एंड इट वॉज मंडे आई गेव माई इंटरव्यू। सो दिस इज हाउ यू गेन योर सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स कितनी भी बुक्स पढ़ने से या फिर लेक्चर सुनने से नहीं आएगा, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। और वो इट्स नॉट जस्ट कि लाइक तुम्हें बड़े प्लेटफॉर्म्स पे आके करने का है प्रैक्टिस, तुम तुम्हारे कॉलेज से स्टार्ट करो। कॉलेज के इवेंट्स में एंकरिंग वगैरह हो गया, बाकी सारी चीज़ें जितनी भी होती है, पार्टिसिपेट इन इट। तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड्स के साथ बोलो कि अपन इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करते हैं। हम इवन लाइक इफ आई नो इंग्लिश, आई कैन टॉक इन इंग्लिश till today, like in my friend circle, like we decided many times that we will start talking English just to gain that confidence to speak in English and like the accent which is required for it. Okay, हम ये हरकतें आज भी करते हैं। वी आर इन थर्ड ईयर, हम अभी इंटरव्यूज प्लेसमेंट्स के लिए जाने वाले हैं और हम ये हरकतें आज भी करते हैं कि लाइक वी डिसाइड कि आज से हम इंग्लिश में बात करेंगे। 2 दिन चलता है, उसके बाद नहीं चलता है, और वो 2 दिन में जितना सीखते हैं ना वो काफ़ी होता है। ओके, तो ट्रेनिंग, अभी अपन सेशन के एंड पे आ गए हैं। देर आर जस्ट 3 मोर स्लाइड्स, मैं और ज़्यादा बोर नहीं करूँगी किसी को। तो ट्रेनिंग में क्या है, अभी सेशन के एंड में रिसोर्स फाइल में एंड बाकी भी तरीके से तुम्हें एक गूगल फॉर्म की लिंक दी जाएगी, विच इज़ द लेवल 1 फॉर्म समझ लो उसको, जो GDSE का फॉर्म है उससे ही रिलेटेड फॉर्म है, विच विल बी लाइक हमें सिलेक्ट करने के लिए कि हमें कौन से स्टूडेंट्स को ट्रेन करना चाहिए। ठीक है, तो वो एक गूगल फॉर्म तुम्हें फिल करना है। उसके आंसर्स को ट्राई टू आंसर देम सीरियसली, क्योंकि इफ़ यू आर नॉट इवन फ्रॉम JSCOE यू कैन पार्टिसिपेट इन ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इज ओपन फॉर एवरीवन, जहाँ पे तुम्हें गिटहब और लिंक्डइन के जो सेशन है वो अटेंड करने को मिलेंगे। तुम्हें स्पेशल एक्सेस मिलेगा पास्ट ईयर लीड्स के वीडियोस एंड आंसर्स का। वीडियोस तो लाइक है ना जितनी भी है अवेलेबल रहेगी यूट्यूब पे, उसकी ज़रूरत नहीं है, बट आंसर्स मोस्टली अवेलेबल नहीं रहते। एंड पर्टिकुलरली जो एक स्पेशल गाइडेंस होता है, तुम तुम्हारे आंसर्स मेरे से रिव्यू करा सकते हो, एंड जितनी भी रहेगी आई विल बी कम्प्लीटली मॉनिटरिंग यू राइट फ्रॉम लाइक तुम्हारी एप्लीकेशन प्रोसेस से तुम्हारी टेस्ट से लेके इंटरव्यूज तक। सो ट्रेनिंग में तुम सब पार्टिसिपेट कर सकते हो। ऑल यू हैव टू डू इज फिल अ गूगल फॉर्म सीरियसली, क्योंकि अगर वो सीरियसली नहीं रहा तो लाइक हम सिलेक्ट नहीं करेंगे तो तुम ट्रेनिंग में नहीं आ पाओगे। एंड फॉर लाइक JSCOE स्टूडेंट्स, जो अभी बात चल रही थी नॉमिनेशन कोड के बारे में, वो सिर्फ JSCOE स्टूडेंट्स के लिए है। वो कोड किसको देना है वो भी मैं इस ट्रेनिंग में ही डिसाइड करूँगी। लाइक मैं लाइक नेपोटिज्म नहीं कर रहे कुछ यहाँ पे कि मेरे पास कोड है तो मैं फ्रेंड्स को या मेरे जो फेवरेट जूनियर्स हैं उनको दे दूँ। सो देयर इज नो नेपोटिज्म हियर। तुम तुम्हारे वर्थ से आके हक से मेरे से वो कोड लेके जा सकते हो। यू हैव अ चांस। GDSE लीड्स नहीं देते ये चांस, ठीक है। यू हैव अ चांस, प्रूव योर सेल्फ, प्रूव योर पर्सनैलिटी, एंड मैं खुशी खुशी तुमको वो कोड दे दूंगी, ठीक है। सो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग करना। ओके, सो फर्स्टली तुम गूगल फॉर्म फिल करोगे, उसके बाद में यू विल बी अटेंडिंग द ऑल द ट्रेनिंग सेशंस, ठीक है, जितनी भी है ना तुमको सारी चीज़ें मिलेगी वो, एंड देन फाइनली यू विल बी गेनिंग योर स्पेशल बेनिफिट्स, ठीक है, विच इज़ लाइक टॉप 3 परफॉर्मर्स को मिलेगा वो बेनिफिट, विच विल बी फ्रॉम JSCOE स्टूडेंट्स। अदर देन JSCOE स्टूडेंट्स को बाकी सारे है ना पर्क्स रहेंगे कि तुम सेशंस के लिए तुम आ सकते हो, और है ना लाइक तुम्हें जितने भी रिसोर्स फाइल्स वगैरह है, रिसोर्सेस है, उतने सारी चीज़ें एक्सेसिबल रहेगी। बट द कोड इज ओनली फॉर JSCOE स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मुझे लिंक्डइन पे किसी का मैसेज नहीं आना चाहिए कि मुझे कोड दे दो, क्योंकि ऐसे मैसेजेस आते हैं। ओके, दिस इज अबाउट द नेक्स्ट GDSE लीड की प्रोसेस, जो मैंने फाइनलाइज की है कि हम JSCOE के लिए नेक्स्ट लीड कैसे ढूंढ रहे रहेंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अदर देन GDSE, ये सारे लॉज, प्रिंसिपल्स, सब कुछ तुम अप्लाई कर सकते हो ये हर एक ना कम्युनिटी प्रोग्राम्स में। दिस ऑल आर ग्लोबल कम्युनिटी प्रोग्राम्स, ठीक है। GitHub कैंपस एक्सपर्ट्स, माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट लर्न एम्बेसडर, एज आई सेड मेरे इंट्रोडक्शन के टाइम पे, I am MLSA,
even we have Devendra who is beta MLSA here. We have Abhinaya and Prahlad who are like alpha and the new MLSAs here. ठीक है, तो हमारे साथ 4 MLSA हैं यहाँ पे, including me. So we have GitHub Campus Experts, MLSA, Microsoft GitHub, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो उनके कम्युनिटी प्रोग्राम्स लॉन्च करती है. ठीक है, फॉर व्हाट? फॉर प्रमोटिंग देयर पर्टिकुलर लाइक है ना टेक्नोलॉजीज. ठीक है, तो एंड देर इज स्पेशली फॉर द वुमेन्स इन द हाउस तुम्हारे लिए 2 स्पेशल प्रोग्राम्स हैं, which one of them is women tech makers which is affiliated by Google. ठीक है, and women in tech. दोनों प्रोग्राम्स सबके पर्क्स सेम रहते हैं. यू गेट अ ग्लोबल कम्युनिटी, तो कम्युनिटी रीच और फिर नेम फेम सारी चीज़ें जितनी भी है पर्क्स सारी कम्युनिटीज़ के सेम है. यू जस्ट हैव टू अप्लाई फॉर देम एंड इफ़ यू गेट सिलेक्टेड यू कैन हैव अ लीडरशिप टाइटल ऑन योर रेज्यूमेस. यस, 5 लाइक और भी लाइक कंपनीज है. देयर इज लाइक कोडिंग निंजास के है ना काफ़ी एम्बेसडर्स होते हैं. बहुत सारे एम्बेसडर प्रोग्राम्स अवेलेबल है मार्केट में, बट दे आर नॉट दैट लाइक लर्निंग उतनी नहीं होती है बिकॉज दे आर द एडटेक कंपनीज एंड दे आर फॉर देयर प्रमोशंस. ओके, दिस इज समथिंग जहाँ तुम्हारी लर्निंग मैक्सिमाइज रहती है. So we will be having another sessions for like separately for each and every domain, but मुझे सिर्फ एक तुम्हें थोड़ा सा overview देने था कि like और भी दूसरी global communities available है जिनके लिए तुम apply कर सकते हो. ठीक है, GitHub Campus Experts के फॉर्म अभी क्लोज हुए हैं. MLSAs के फॉर्म ओपन होते हैं ईयरली, क्वार्टरली बेसिस पे उनका सिलेक्शन होता है. यू कैन इवन कनेक्ट एनीवन फ्रॉम द लाइक दिस मीटिंग, me, Prahlad, Devendra और Abhinaya for the guidance for MLSA. The women tech makers उसके फॉर्म्स अभी ओपन होंगे अप्रैल में. As far as I know, women in tech के भी हमेशा ओपन रहते हैं. GDG is something which I said जिसने डेफेस्ट ऑर्गेनाइज किया था, गूगल डेवलपर्स ग्रुप विच इज़ अ रीजनल कम्युनिटी. जैसे GDSC एक कॉलेज के लिए होता है विच इज़ ऑन कॉलेज लेवल. GDG is something which is regional level, like पुणे के लिए, नागपुर के लिए, मुंबई के लिए. So GDG is an regional level community which you can be a part of. Okay, सबके application forms if even like तुम सिर्फ Google पे इनके names भी search करोगे, उनकी official sites आ जाएगी, उनके application forms कैसे तुम्हें apply करना, everything will be available over there. Okay, next slide and next slide पे मेरे पास थोड़ी बहुत tips है जिसमें से मैक्सिमम मैंने कवर अप कर ली है, बट स्टिल वी विल सी कि क्या क्या है यहाँ पे अपने पास. फर्स्ट थिंग इज डू नॉट टेक मॉडल आंसर्स. मॉडल आंसर्स किसी के भी नहीं उठाने के. ठीक है, एंड देन मॉडल आंसर्स मतलब किसी और ने अप्लाई किया है, मैंने अप्लाई किया है, मैं मेरे अगर आंसर्स तुम्हें कहीं से मिल जाते हैं प्रोवाइड करती हूँ. सो तुम्हें उनको थोड़ा सा बहुत ग्रामेटिकल चेंजेस कर दिया, एक्टिव पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया एंड अपलोड कर दिया. यू डोंट नीड टू डू दैट. ठीक है, बी ओरिजिनल, बी यूनिक, बी रियल. तुम जो हो, जैसे हो वैसे ही आंसर्स वहाँ पे लिखने के हैं. ठीक है, ऑलवेज प्रूफ रीड. ठीक है, प्रूफ रीड कर लो, स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल एरर्स, सारी चीज़ें. एंड यू कैन यूज फॉर दिस यू कैन यूज टूल्स सच एज ग्रामरली एंड क्विलबॉट. सारी ग्रामरली, क्विलबॉट, जितने भी मैं टूल्स वगैरह बता रही हूँ एंड एवरीथिंग, उन सब की लिंक्स रिसोर्स फाइल में एडेड है. वहाँ पे विजिट करना. क्विलबॉट इज समथिंग कि लाइक वहाँ पे तुम रिफ्रेश कर सकते हो तुम्हारे सेंटेंसेस को, एंड ग्रामरली इज समथिंग जहाँ पे तुम स्पेल चेक एंड ग्रामर चेक कर सकते हो. ओके, यूज कीवर्ड्स इन योर आंसर्स. तुम्हें तुम्हारे आंसर्स में कीवर्ड्स यूज करने विच विल बी लाइक मोटिवेशन, व्हाट मोटिवेट्स यू, व्हाट इज योर ड्राइविंग पावर, तुम्हारी है ना लाइक बाकी सारे जितने भी. GDSC की साइट है ना विजिट करना, वहाँ पे जो उनके मॉरल वैल्यूज है, व्हाट दे आर लुकिंग फॉर. GDSC का मोटो इज कनेक्ट, लर्न एंड. तुम्हारे आंसर्स में से ये 3 चीजें वहाँ पे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए. ठीक है, ये हो गया. यूज स्टैटिस्टिक्स, जहाँ पे भी नेसेसरी है वहाँ स्टैट्स यूज करो. स्टैट्स कहाँ पे काम आते हैं, जैसा मैंने बोला, जब तुम तुम्हारे एक्सपीरियंसेस बता रहे रहोगे. द सेकेंड क्वेश्चन इज अबाउट योर एक्सपीरियंस इन लीडिंग द प्रोजेक्ट और समथिंग. ठीक है, तो वहाँ पे तुम स्टैटिस्टिक्स यूज करो कि मैंने 3 सेशंस लिए, मैंने 30 स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस किया, मेरे 100 फॉलोवर्स है, या फिर मैंने
250 स्टूडेंट्स के सामने एक स्पीच दी है, वहां पे स्टैट्स यूज करो, क्योंकि वो एक बहुत ऐसा इमेज क्रिएट करते हैं और काफी ऐसा लिजिट लगती है चीजें. ओके, स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस, मैंने बोला स्टार्ट लाइक तुम्हारी जितनी भी प्रेजेंस रहेगी उतना ना उस सारी चीजों को, तुम्हारी प्रेजेंस को वहां पे बिल्डअप करने की कोशिश करो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे. ओके, बी एक्टिव इन लीडिंग कम्युनिटी क्लब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग्स. मैंने हमेशा बोला है कि GDSC में नॉट इवन लाइक इफ यू आर नॉट द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग टीम, बी अ पार्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम. ठीक है, तुम्हें एक्सपीरियंसेस सेम लेवल के आने वाले हैं. ठीक है, experience proves your leadership, communication, community building skills rather than plainly stating at it. ठीक है, अगर तुम सिर्फ स्टेट करते हो ना तो कुछ नहीं होगा, बट तुम वहां पे अगर एग्जाम्पल दे रहे हो तो लाइक वो काफी ज्यादा ये एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा. ओके, सो लेट्स हैव द नेक्स्ट स्लाइड. These were a few recommendations from my side, and here we are done with the sessions, and I am open for all the questions and answers and doubts which you have. Okay, let's have a Q&A session. You can unmute your mics, you can ask your doubts in chat box. By the time मैं तुम्हें resource file provide करती हूँ. I hope तुम्हें resource file पसंद आएगी. काफी मेहनत लेके मैंने ये resource file create कर रही है सबके लिए. Jasmine, do you want me to share that resource file on my screen? Yeah, you can do that. Okay. Thank you so much. Other members from core team members from GDSC JSCOE, resource files की link title के साथ groups में share कर दो for the students. And this is the resource file. ठीक है, तुम्हें edit access नहीं दिया है मैंने, yes of course. And यहाँ पे क्या क्या available है. You can connect with GDSC JSCOE. GDSC JSCOE का लिंक ट्री अवेलेबल है. कोई भी लिंक अगर एक्सेसिबल नहीं है जस्ट लेट मी नो. ठीक है, मोस्टली एक्सेसिबल रहनी चाहिए. ठीक है, सो वी हैव GDSC JSCOE. यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन LinkedIn, Instagram I wouldn't prefer, but ठीक है, मोस्टली प्रिफर LinkedIn and WhatsApp. I am always active over there. So just wait for my reply. जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं वहाँ पे तुम्हारी जो भी क्यूरीज रहेगी, even you can ask your doubts on है ना our official groups. And for the students जो कि JSCOE से नहीं है, you can either connect me or you can join the WhatsApp groups and everything of GDSC JSCOE, जहाँ तुम्हें बाकी की सारी चीजें मिल जाएगी. The third link which is highlighted is for the Google form for training. जो मैंने ट्रेनिंग की अभी बात करी, विच यू हैव टू फिल फॉर लाइक स्पेशल गाइडेंस एंड असिस्टेंस, जहाँ मैं ट्रैक कर सकती हूँ कि भाई मेरे जैसा लीड के लिए मैं एम कर रही हूँ, वो लीड कहाँ है जो मैं ढूंढ रही हूँ, वो मुझे इस गूगल फॉर्म से आई एम एक्सपेक्टिंग. ओके, सो आई विल रिकमेंड कि वो फॉर्म जल्दी से फिल कर देना. आई नो इट्स फेस्टिव सीजन एंड एवरीथिंग, बट ट्राई टू फिल इट बिफोर द डेडलाइन. ठीक है, डेडलाइन इज ऑफ 8th मार्च. 8 मार्च के 12 बजे, जैसे ही 9th मार्च आता है फॉर्म्स क्लोज कर देंगे हम. ओके, उसके बाद फिर आई डोंट थिंक सो कि हम और बच्चों को रिक्रूट करेंगे या कुछ मैं ट्रेनिंग के लिए लूंगी. एंड इवन आई एम नॉट टारगेटिंग फॉर अ लार्ज ऑडियंस कि मुझे 30-40 बच्चे चाहिए. आई एम जस्ट लुकिंग फॉर 10 बेस्ट स्टूडेंट्स जिनको मैं ट्रेन करूँ एंड उन्हीं में से कोई लीड सिलेक्ट हो. ठीक है, आज के इवेंट प्रेजेंटेशन में से तुम्हें अगर कुछ भी चाहिए तो उसके लिए प्रेजेंटेशन की वहाँ पे है ना तुम्हें लिंक प्रोवाइडेड है. GDSC लीड एप्लीकेशंस जो ऑफिशियल एप्लीकेशंस है उसकी भी लिंक यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड है. फॉर एवरीवन हु आर नॉट कॉन्फिडेंट विथ योर कम्युनिकेशन स्किल्स, तुम्हारे लिए स्पेशल थोड़े बहुत मैंने जितने मुझे मिले कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर कोर्सेस या फिर एटलीस्ट वीडियोस यहाँ पे कलेक्ट करके रखे हैं. Prahlad, can you scroll down? How to write well, how to speaking, public speaking tips, improve your public speaking, the art of public speaking, being a leader. हर सॉफ्ट स्किल जितनी मुझे कवर करते आई मोस्टली उसके ऊपर यहाँ पे देयर इज समथिंग फॉर दैट. ठीक है, नेक्स्ट चीज, आई हाईली रिकमेंड अ बुक विच इज बिल्ड डोंट टॉक. ओके, दिस बुक इज समथिंग as I said that I have a good habit of reading books. यहाँ पे जिसको भी बुक्स रीड करना पसंद है, I will highly recommend you
तुम्हारे 4 साल की इंजीनियरिंग के लाइफ में बाकी कुछ किया हो ना किया हो, एटलीस्ट रीड दिस बुक, यू विल गेट सो मच कॉन्फिडेंस. एंड ये बुक मुझे यहाँ ऐड करने का लाइक है ना क्यों आया. नो देवेंद्र, लाइक डोंट शेयर दैट ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक. लाइक हम उस ग्रुप में स्टूडेंट्स को आफ्टर एप्लीकेशन फॉर्म्स के रिव्यू के बाद ऐड करेंगे. ओके, coming back to the book. So when I was reading yesterday, so I got this chapter which is chapter number 27 on how to become a great public speaker. And जब मैं read कर रही थी, I got a feeling कि यार ये students को पता होना चाहिए ये book कहाँ या ये chapter कहाँ था जब मैं practice कर रही थी public speaking की skills का. Okay, तो वो मुझे book नहीं मिली, online PDF में मैंने काफ़ी सर्च किया, मुझे वो अवेलेबल नहीं हुआ. सो वहाँ पे अमेजोन की लिंक है बिल डोंट टॉक पे. बट चैप्टर 27 का मैंने पर्सनली तुम्हारे लिए एक हाईलाइटेड PDF क्रिएट किया है, जो कि आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि इवन इफ लाइक तुम्हें लाइफ में कभी GDSE लीड के लिए अप्लाई नहीं भी करना है, एक बार रीड करना. इट्स वर्थ इट. ओके, इट्स रियली वेरी वर्थ इट. एंड थैंक्स टू अ पर्सन फ्रॉम दिस मीटिंग हु गेव मी लाइक दिस गिफ्टेड मी दिस बुक. If we like go down, तुम्हारे लिए sample resume videos है. Resume video is something है ना जहाँ पे तुम्हें the 90 seconds video which I said, video durations यहाँ पे vary कर सकते because like है ना बाकी सारी चीज़ें different timelines के वो है. Okay, तो just give a thought कि तुम्हें सिर्फ 90 seconds की है ना video बनाने की है. So there are sample videos, मेरी भी वीडियो वहाँ पे included है. There are links to the tools for better writing. Okay, can we go down? How to submit an answer, मैंने जितनी भी चीज़ें बताई, how to submit an awesome video, उसके लिए जितनी भी वीडियो सेटअप के लिए, आंसर्स लिखने के लिए जितनी भी सारी चीज़ें की ज़रूरत है या जितना भी मैंने अभी यहाँ पे ना बोला है, एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड इन दिस रिसोर्स फाइल. एंड दिस इज समथिंग जो कि तुम्हें 31 मार्च तक और उसके आगे भी हमेशा हेल्प करने वाला है. स्क्रॉल मोर. ओके, एवरीथिंग इज रिटन ओवर हियर कि तुम्हें आंसर्स कैसे लिखने हैं, आंसर्स की स्क्रिप्टिंग नहीं करने की है एंड एवरीथिंग एल्स. एंड आई गेस द लास्ट लाइन या लास्ट एडवाइस विच आई विल गिव यू is be yourself, have fun and show your personality. जितनी personality, जैसी personality तुम्हारी है, showcase it same as it is. ठीक है? You don't need to fake anything just to gain something. Okay? And here I am done with my session of sharing you resource files and everything. And yeah, I am officially done. If anyone has any doubts, you can ask back. I hope a resource file is accessible to everyone. Yeah, it is. Okay, are there any doubts? Like you can unmute yourself and everything. You can ask them in chat box. One more tip, do not procrastinate your GDSE lead application form. Okay, मैंने मेरी बैच के साथ काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे who used to procrastinate कि कल फिल कर देंगे but at the end they were not able to fill the form. Deadlines निकल गई, their answers were not prepared, their video was not prepared, which is not a good sign. Formality के लिए मत fill करो, like तुम्हारा best foot वहाँ पे present करने का try करना. Okay. Devendra, we can stop recording now. We will wait a couple of minutes for just doubts and then we can wind up.